گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت. درود و درحبات. آج ہم بات کرتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے حوالے سے، بلوچستان یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے. بلوچستان یونیورسٹی جس کا بندات 1970 سے ہوا تھا، جو آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں کس زبو حالی کا شکار ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسرز یا بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء یا بلوچستان یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف کیا مسائل فیس کر رہے ہیں، آج کے ہمارے اس یہ موضوع ہوں گے. اور گزشتہ 3 سالوں میں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف سے جو 50% بجٹ کی کٹوتی کے اثرات بلوچستان یونیورسٹی پہ یا بلوچستان کے تعلیمی ماحول پہ یا بلوچستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پہ یا ادارے پہ کیا پڑیں گے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بلوچستان یونیورسٹی کے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو سینڈیکیٹ ہے یا دوسرے سینٹ ہیں، جتنی ادارے ہیں، ان کے رول کیا ہیں، اور یہ پروفیسرز ایسوسی ایشن کو جو گزشتہ ان کی جو اجلاس ہوئی تھی ان کے جو فیصلے پہ کیوں اعتراضات ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے. اور آج ہمارے مہمان ہیں فرید اچکزئی صاحب، کہ وہ خود ایک پروفیسر ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، اور اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن بلوچستان یونیورسٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن بلوچستان چیئر کے پریزیڈنٹ اور صدر بھی ہیں. جی فرید صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ویلکم کرتے ہیں گدان ٹی وی میں. ویلکم، بہت بہت شکریہ شمس بھائی آپ لوگوں کا کہ گدان ٹی وی نے آج ہمیں عزت بخشی ہے. بہت بہت شکریہ. جی سر، ہم بات کرتے ہیں آج بلوچستان یونیورسٹی کے ایشو پر، کہ جو اندرونی ایشوز ہیں، جس طرح کے پچھلے 3 سالوں میں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف سے جو 50% بجٹ کی کٹوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ سے جانکاری لیں گے. مگر پہلے میں یہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 95 یا 90s کی دہائی میں آپ اسٹوڈنٹ تھے، اس وقت آپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور آج آپ اسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور پروفیسر میں اسی طرح کے آپ یونینس لیڈرز بھی ہیں اپنے ایسوسیشن کے. تو آپ مجھے کوئی کیا فرق دکھائیں گے کہ اس دور میں اسٹوڈنٹ میں، ٹیچرز میں، ہاسٹل کی لائف سے لے کر یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف تک، بیہیویئر رویوں تک، یونٹی تک اور خوف تک، اور آج کے دور میں کہ آپ پروفیسر ہیں، فرق کیا ہے بہت زیادہ جو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے کہ جس ٹائم شمس بھائی آپ بھی یہاں پہ تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ہم بھی یہاں پہ تھے، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا. اور ماشاء اللہ کے دور کے بعد جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ڈیولپ ہوئی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جو ہمارے ساتھی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کی سیاسی بلوغت مطلب بڑی میچیور تھی. وہ آپ دیکھیں کہ وہی لوگ صوبائی اسمبلی کے ممبران بنے ہیں، وہی لوگ قومی اسمبلی کے ممبران بنے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا سینٹ پاکستان میں آج کل بڑے مطلب خوش اسلوبی سے اپنے ملک، وطن، قوم کی، صوبے کی خدمت کر رہے ہیں. بنیادی فرق یہ ہے کہ اس وقت سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے، سیاسی پارٹیوں کے لیڈرشپ آ کے بلوچستان یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی سرکل دیا کرتے تھے. اس اسٹڈی سرکل کی بنیاد پر ان کی سیاسی علم میں اضافہ ہوتا تھا. سیاسی علم میں اضافے کی وجہ سے ان میں سنجیدگی، بردباری مطلب مستحکم ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی وہ لوگ بڑے قابل فخر
मतलब उनके रिजल्ट होते थे जो सियासत में भी बड़ा अच्छा मकाम रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब सियासत तालीमी इदारों से निकलकर सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट तक पहुंच गई, तो सियासी पार्टियों ने कुछ, मेरी अपनी जाती राय है कि बड़ी कमजोरी दिखाई कि उन्होंने जो स्टूडेंट्स तालीमी इदारों में उनकी जो तंजीमें थी, ज़िली तंजीमें थी, उसकी तरफ तवज्जो कम कर दी, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि सियासी मतलब जो इल्म है बच्चों में, उसकी बड़ी कमी पाई जाती है और वो संजीदगी से वो सियासत नहीं कर पाते, जो कि हमारे दौर में जो स्टूडेंट्स जिस संजीदगी से और बुर्दबारी से अपनी सियासी मकाम रखते थे, आज मेरे ख्याल में कोई भी एक ऐसा तालीमी इदारा वजूद नहीं रखता जिसमें एक तलबा और तालिबात में एक सियासी मेच्योरिटी हो। और इसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि असातिज़ा के भी बड़े फराइज बनते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने सब्जेक्ट के अलावा उनको इस चीज की भी जरूरत मतलब स्टूडेंट्स को बताएं कि भाई इल्म, सियासी इल्म भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे बलूचिस्तान के जितने भी सियासी लीडरशिप हैं वो इस वक्त 70 की दहाई से मतलब 70 की साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र में इस वक्त इनकी एज है। तो अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, मतलब जितनी भी उनकी उम्र हो, आखिर इंसान ने अपने इख्तिताम को पहुंचना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पीछे ऐसे कैडर्स जो सियासी इल्म रखते हों और सियासी बर्दबारी उनमें मौजूद हो, एक ऐसे रिजीम वो तैयार करे कि बाद में वो उनकी रिप्लेसमेंट की वजह बन सके। लेकिन मैं देख रहा हूँ न तो असातिज़ा ने बच्चों को इस तरफ मायल किया है, न सियासी पार्टियों ने इस तरफ मायल किया है, जिसकी वजह से कम इस वक्त तालीमी इदारों में मैं कहता हूँ कि सियासी पसमानदगी उरूज पर है। जी, आपकी मुख्तसर ये है कि आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपका कहना यह है कि वो जो एनजीओज़ के काम कर रहे हैं, जो नज़रिया उनको देना था, कौमी या शऊर देना था, वो उसको नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने दो जुमलों में इसका खुलासा बयान किया। वाकईतन बिल्कुल इस वक्त कोई एक भी सियासी पार्टी वो स्टूडेंट की तरफ माइल नहीं है कि उनको सियासी इल्म दे सके, क्योंकि वो खुद सियासी पार्टियां इस वक्त गुमगू की हालत में हैं। सियासी पार्टियां खुद अपने मंशूर और नजरिए से दूर हट चुकी हैं, तो वो मेरे ख्याल में स्टूडेंट को अब फेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि अमली तौर पे हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उसने अमली तौर पर एक अमली सियासत जो आवाम के लिए होती है, सूबे के लिए होती है, मुल्क के लिए होती है, कौम की खिदमत के लिए होती है, किसी भी सियासी पार्टी, अगर मैं कहूँ मुल्की सतह पे या सूबाई सतह पे या नेशनल पार्टियां हो या जो हमारी कौम परस्त पार्टियां हो, किसी ने भी अमली तौर पर कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो काबिल फख्र हो। जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात पे। तो फरीद साहब, मैं आपके स्टेटमेंट मैंने देखा जो मुतालबात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने वहाँ लिखा है कि यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने लिखा है कि आपने अपने मुतालबात में जो पॉलिसी साज इदारों के बारे में आपने जिक्र किया था, सिंडिकेट है, सेनेट है या कि एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी में असातिज़ा, ऑफिसर्स और तलबा तालिबात की मुंतखब नुमाइंदगी को यकीनी बनाकर जामात में जमहूरी रवायत को फ़रोग़ दें। आप बोल रहे हो कि इन इदारों में, पॉलिसी साज इदारों में प्रोफेसर्स या ऑफिसर्स इनको इन्वॉल्व करके, तो अभी कैसा चल रहा है? तो अभी कौन कल चला रहा है इसको, इन इदारों को? असल में ऐसा है कि 1996 में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी एक्ट सूबाई असेंबली से पास हुआ। 96 से पहले हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के तहत चल रही थी। जब 96 में ये एक्ट पास हुआ जिसमें हमारे पश्तून, बलोच, यहाँ के रहने वाले उर्दू, पंजाबी स्पीकिंग जितने भी मतलब बलूचिस्तान के सूबाई असेंबली के मेंबरान थे, उनकी मुत्तफिका काविशों से ये एक्ट वजूद में आया। जिस 1996 एक्ट को मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के एक्ट से हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का एक्ट सबसे अच्छा था। उसकी मैं चंद बुनियादी नुकात आपको बताता चलूं। ये वो वाहिद एक्ट था कि जिसमें
एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन यानी असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम जो एक बुनियादी स्टेक होल्डर है तालीमी इदारे की, वो बलियाज ओहदा इन तमाम फैसला साज इदारों में जिसका ताल्लुक हमारी इंतजामिया से है, यानी हम उसे सिंडिकेट का नाम देते हैं, हम उसे सेनेट का नाम देते हैं, एकेडमिक काउंसिल जो हमारी तालीमी फैसले करते हैं उसमें जो है ना असातिज़ा की नुमाइंदगी थी, और हमारे फाइनेंस एंड प्लानिंग यूनिवर्सिटी के जितने भी मुआशी मसाइल होते थे उसमें हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तलबा और तालिबात बलियाज ओहदा और इलेक्शन के जरिए हमारे मुंतखब नुमाइंदे इन फैसला साज इदारों में बैठते थे। लेकिन अभी तकरीबन कोई 1-1.5 महीने पहले 1996 के एक्ट में तरमीम करके एक नया बिल कौमी असम्बली से पास किया गया। 2022 तालीमी तरमीमी बिल के नाम से पास किया गया और एक्ट में वो कन्वर्ट हुआ है, जो बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ये एक्ट लाजिम करार दिया गया और सब के लिए ये एक ही एक्ट है जिसमें इन तालीमी इदारों के फैसला साज जितने भी मतलब इन तालीमी मराकज के जो फैसला साज इदारे थे इनमें यकसर असातिज़ा की, तलबा की और मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदगी को यकसर खत्म कर दिया गया है और एक फर्द वाहिद यानी वाइस चांसलर को इतना बाइख्तियार बनाया गया है कि वो अपनी मर्जी से फैसला साज इदारे में लोग मुंतखब करें और उनसे अपने मनमाने फैसले कराएं। आप देखें, अब अगर एक वाइस चांसलर चंद लोगों को मुंतखब करके एक कमेटी या फैसला साज इदारे में उनकी शमूलियत करता है तो फिर क्या वो वाइस चांसलर के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं या किसी ऐसे अमल की मुखालफत कर सकते हैं जो वाइस चांसलर से सरजद हुआ है? क्योंकि हमारे सिंडिकेट वो वाहिद इदारा है जिसमें वाइस चांसलर उस फोरम को अकाउंटेबल होता है। वो फोरम सिंडिकेट के मेंबरान जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वोटों के जरिए मुंतखब होते हैं, वाइस चांसलर उसके सामने जवाबदेह होता है। वो फोरम उससे पूछता है कि आपने ये फला काम क्यों किया था, आपने क्यों ऐसा गलत काम किया था। तो वाइस चांसलर्स और ऐसे हर किसी रिजीम की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आप को इतना मतलकुल अनान यानी मैं कहता हूँ मुगल शहंशाह बना ले कि वो किसी को जवाब देना हो। तो ये एक साजिश के तहत हमारे एक्ट में तरमीम की गई और इसमें सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एक बलोच कौम परस्त पार्टी ने इस तरमीमी बिल के पास होने में साथ दिया, जिससे हमें बड़ा दुख हुआ है क्योंकि इसी कुल सरजमीन के मालिक यहाँ के बलोच, पश्तून, हजारा, उर्दू, पंजाबी सारे लोग हैं। हम सबको ये सोचना चाहिए था कि ऐसा तालीमी डिजास्टर, बिल्कुल ये तबाही है तमाम यूनिवर्सिटी के लिए, तमाम तालीमी इदारों के लिए। हमारी बलूचिस्तान की तकरीबन 9 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें ये एक्ट जब लागू होगा मुकम्मल स्पिरिट के मुताबिक तो आप यकीन करेंगे कि ये तालीमी तौर पर हमारा सूबा पहले से ही पसमानदा है, मजीद पसमानदगी की तरफ जाएगा क्योंकि जब बुनियादी स्टेक होल्डर इन फैसला साज इदारों में शामिल नहीं होंगे और यहाँ के लोगों के खिलाफ फैसले होंगे तो मेरे ख्याल में ये तालीमी तबाही होगी। ये फरीद साहब बता सकते हैं कि ये तरमीम किसने किया फिर? ये तरमीम सूबाई हुकूमत के वजीर तालीम जो हमारे मरी साहब हैं उनकी मतलब किसी ने बिल पेश किया इसको एज ए प्रपोजल, किसी ने पेश किया, किसने पेश? मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मरी साहब, उनकी तरफ से जो है ना ये बिल पास हुआ है और हमने इसकी शदीद मुखालफत की। उसी दिन हमने सूबाई असम्बली के सामने मुजाहरा भी किया। हम तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान से भी मिले, हम वजीर आला से भी मिले, हम मौजूदा एक्टिंग गवर्नर साहब से भी मिले। उन्हें हमने बताया कि खुदारा इस बिल को पास ना करें, ये एक तालीमी तबाही होगी। लेकिन आपको पता है कि आजकल जितनी भी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक हो, मेरे ख्याल में उनको हमारे तालीमी इदारों से, हमारे आवाम से कोई गरज नहीं, उनको अपनी साथ से गर्ज है। तो इसलिए उन्होंने, मैं दावे से कहता हूँ कि 65 सूबाई असम्बली के मेंबरान में 6 मेंबरान ने भी ये बिल नहीं पढ़ा होगा और आंखें बंद करके इस बिल को पास किया।
دوسری بات ہے کہ یہ جو سینڈیکیٹ کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے تھے، ابھی جو اجلاس جو بلایا گیا تھا، اس میں جو ایون کہ جو اساتذہ کی رہائش کے حوالے سے کہ 37,000 سے لے کر 72 تک، اور دوسرا ان کی حاضری لگانا، تو یہ سارے جو فیصلے ابھی آئے ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے، ایک تو یہ ہے کہ تو ان کی وجہ کیا ہے اور ان کو آپ روکیں گے کیسے؟ ابھی جو سینڈیکیٹ نے فیصلہ کیا ہے قانونی اصل میں کارروائی میں. دیکھیں، ہم جب اس ایکٹ کی مخالفت کر رہے تھے اس میں وجہ یہ تھی کہ جب سٹیک ہولڈر ان فیصلہ ساز اداروں میں شامل نہیں ہوں گے تو ایسے علم دشمن فیصلے ہوں گے جس سے اساتذہ میں بے چینی پائی جائے گی، اسٹوڈنٹس میں بے چینی پائی جائے گی، ملازموں میں بے چینی پائی جائے گی. اور آپ کو بہتر پتا ہے کہ تعلیم کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے. اساتذہ کو فری مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا علم ٹرانسفر کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو فری مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا اپنا علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن جب آپ خود سوچیں، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے اس موجودہ ایکٹ کے تحت پہلی سینڈیکیٹ میٹنگ ہوئی اور اتنی جلد بازی میں یہ میٹنگ بلائی گئی جیسے جیسے کسی کو موقع ملتا ہے نا چوری کا، یعنی چوری کے راتوں رات. ذریعے فوراً جو ہے نا یہ انہوں نے یہ میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اساتذہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل نام ہی اس کا ہاسٹل ہے، ٹیچر ہاسٹل، جس میں ایک کمرہ ہے. اچھا، اس کمرے کی چارجز جو ہے نا 1200 روپے تھے اور اس کے جو ہے نا بل اور بجلی کے اور گیس کے بل جو ہے نا اساتذہ یہ خود پے ٹیچر کرتے تھے. ہاسٹل کی آپ بات کریں یا کالونی میں جو رہ رہے جی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ ٹیچر ہاسٹل کی میں بات کر رہا ہوں. اس ٹیچر ہاسٹل میں ایک کمرے کا اب اساتذہ کو جو ہاؤس ریکوزیشن ملتا ہے وہ یعنی آپ اگر کسی گھر میں رہتے ہیں یونیورسٹی سے باہر، یا آپ نے کوئی گھر ریکوائرڈ کیا ہو، آپ نے کرائے پہ لیا ہو، اس کی ہمارے گریڈ 18 کے اساتذہ کرام کی ہاؤس ریکوزیشن 40,000 اور ہمارے گریڈ 21 کے پروفیسرز کی ہاؤس ریکوزیشن 79,000 ہے. وہ بھی اسی ہاسٹل میں رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اساتذہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے مکمل ہاؤس ریکوزیشن ایک کمرے کی مد میں کاٹا جائے گا. ابھی آپ خود سوچیں کہ ایک کمرہ جس کا نام ہاسٹل بھی ہے، دنیا کی کسی بھی جگہ آپ جائیں، ہاسٹل ہوتا ہے، ہاسٹل کے لیے نامنل چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پے کیے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے اسی کوئٹہ میں ہے سائنس کالج، یعنی سائنس کالج شہر کے دل میں ہے، بالکل شہر کے سینٹر میں، وہاں پہ بھی ہاسٹل ہے. 1400 روپے جو ہے نا اساتذہ سے کاٹے جاتے ہیں. لیکن ہمارے وائس چانسلر صاحب جو اس وقت مغل شہنشاہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے زبردستی یہ فیصلہ کروایا کہ ہم ہاؤس ریکوزیشن 38,000 سے لے کر جو 79,000 پروفیسر کی ریکوزیشن ہے وہ ایک کمرے کی مد میں اگر وہ رہائش اختیار کرے گا ہاسٹل میں، ان سے ڈیٹیکشن ہو. اب آپ اندازہ کریں. اور دوسری بات، پروفیسر، اساتذہ کرام، پوری دنیا میں اساتذہ کرام کی ڈگنیٹی ہوتی ہے. یعنی ایک استاد، یونیورسٹی کے استاد کو تو ایک مثال کے طور پہ دنیا میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں ملک بڑا ترقی یافتہ ہے، یہ فلاں ملک نے بڑی ترقی کی. انہوں نے اس وقت ترقی کی ہے جب انہوں نے اساتذہ کے احترام کو اور اساتذہ کی قدر کو انہوں نے پہچانا، تو اس وقت ان ملکوں نے ترقی کی. لیکن ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ان کی بے عزتی، ان کی ڈگنیٹی کی توہین کی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ رجسٹر پہ اٹینڈنس لگائیں، حالانکہ اساتذہ کی اٹینڈنس اس کی کلاس ہوتی ہے. جب وہ کلاس لیتے ہیں، وہ بچوں سے اٹینڈنس لیتے ہیں، اس پہ وہ سائن کرتے ہیں، یہ اس کی اٹینڈنس ہوتی ہے. لیکن ابھی وہ ایک کلرک الگ اور سے. چپراسی والا بیہیویئر اساتذہ کرام کے ساتھ کر رہے ہیں. جی، ابھی ایک اور بات ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں یہ جو ہائر ایجوکیشن کی طرف سے کہتے ہیں کہ 50% بجٹ کی کٹوتی، تو تعلیمی بجٹ میں ان کو یہ ریزن کیا دے رہے ہیں کہ یہ 50% جتنے کٹوتی وہ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اصل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اپنے منشور میں کہا تھا کہ ہم تعلیم کو اہمیت دیں گے، یعنی ہم تعلیم کو فوکس کریں گے. لیکن المیہ یہ رہا کہ 4 سال یہ پچھلی حکومت رہی، لیکن انہوں نے تعلیم کا اور اسپیشلی ہائر ایجوکیشن کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا.
उन्होंने तालीमी बजट में इतनी कमी की कि तमाम यूनिवर्सिटी, इस वक्त 190 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, यानी गवर्नमेंट की 190 यूनिवर्सिटीज है, वो साली माली बहरान का शिकार है। और इसकी बुनियादी वजह पिछली हुकूमत के इकदामात है कि उन्होंने तालीमी बजट में फर्दन हर साल इतनी कटौती की कि माली तौर पर तमाम यूनिवर्सिटियां दिवालियापन का शिकार हो गई। और अब सोने पे सुहागा ये जो नई हुकूमत आई है इस वक्त, इनको तो सोचना चाहिए था कि हम हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दें। उन्होंने मजीद एक प्रपोजल सबमिट किया है कि हम 30 अरब रुपए सिर्फ रखेंगे 190 यूनिवर्सिटियों के लिए। अब आप खुद अंदाजा करें कितना बड़ा जुल्म है। 30 अरब रुपए है क्या? हमारी अपनी जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी इस वक्त सबसे छोटी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की। हमारे सूबे की बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे हमारी सबसे छोटी यूनिवर्सिटी है। 2 अरब रुपए तो सिर्फ हमारी तनख्वाहों के बनते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस बनते हैं, लेकिन उन्होंने 30 अरब रुपए 190 यूनिवर्सिटियों के लिए मुख्तस किए हैं। इससे बड़ा जुल्म मेरे ख्याल में नहीं। ये तालीम को तबाह करना चाह रहे हैं, हमारे मुल्क, हमारे लोगों को, हमारी आवाम को पीछे करना चाह रहे हैं। और फिर अलमिया ये है, हमारे साथ जो सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ है, ये सबसे गरीब सूबा है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। और ये हमारी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन यूनिवर्सिटी है। बाकी यूनिवर्सिटीज अपने फीसिस बढ़ाते हैं। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल लेते हैं, कायदे आजम यूनिवर्सिटी की मिसाल लेते हैं, वहां एक सेमेस्टर के 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए, यानी 60-60% वो स्टूडेंट्स के जरिए अर्न करते हैं। उनके स्टूडेंट्स की तादाद भी जो है ना ज्यादा होती है। हमारे इस वक्त 6 से 7 हजार स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ते हैं सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से, और वो भी उस गरीब इलाकों से वो बच्चे आए हुए होते हैं कि उनके पास अपने हॉस्टल की फीस नहीं होती, अपने खाने की फीस नहीं होती। अब अगर आप उनकी फीसेस बढ़ाएंगे तो इस वक्त अगर पूरे बलूचिस्तान से 5-6 हजार स्टूडेंट्स बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर फीसेस बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल में वो 500-600 के करीब रह जाएंगे। और ये हमारी इस सूबे के साथ बड़ी ज्यादती होगी, यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती होगी। इस पे सूबाई हुकूमत को, हमारे खासकर कॉमपर्स पार्टियों को सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई सूबा दोस्त हैं, वो वाकई अवाम दोस्त हैं और वो वाकई कॉमपरस्ती का दावा करते हैं, तो हमारी इस यूनिवर्सिटी को बचाएं। इसके लिए स्पेशल ग्रांट वो मुख्तस करें ताकि यूनिवर्सिटी माली बहरान से निकल आए। जी फरीद साहब, आप जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो फ़ीस अदा करें। एक तो ये है कि दिन ब दिन फ़ीसों का इजाफ़ा हम देख रहे हैं, दूसरा ये है कि बहुत सारे और मसाइल हैं जो तालीमी इदारों में पैदा कर रहे हैं। बलूचिस्तान से अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में हैं, वहाँ जो बलूचिस्तान की जो स्कॉलरशिप थी उनको भी बंद कर रहे हैं, और वो भी जो दरवाजे थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी साजिश के तहत बलूचिस्तान के साथ ये हो रहे हैं, ये किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं इसे साजिश ही कहूंगा। देखें, एक तो हमारी ये वाहिद सूबा है जिसमें ना आपको कारखाने नजर आएंगे, ना आपको एग्रीकल्चर उस शक्ल में नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला है। हमारे पास कोई नहरी निजाम नहीं। पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें अपना पानी का जो मखसूस कोटा है या मुख्तलिफ दरिया उनमें बह रहे हैं, ठीक है। वहां पे नदी नाले निकाले गए, मुख्तलिफ एरियाज को पानी सप्लाई होता है, उनकी एग्रीकल्चर जो है ना वो उससे होती है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान में आप देखें, ना कोई नदी नाले हैं, ना कोई हमें ऐसे उस पानी से हिस्सा दिया गया है कि हम अपनी एग्रीकल्चर को डेवलप करें, और कारखाने तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ड्राउट भी इस रीजन में ज्यादा ही आया है। तो हमारे पास तो ना कोई ऐसे वसाइल हैं कि हम उसके जरिए अपने मतलब तालीम को जारी रख सकें या बाकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें। फिर जो आपने स्कॉलरशिप की बात की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हमारा कोटा है स्कॉलरशिप्स का, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब जहां तक साजिश की बात है, तो इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आए दिन हमारे पश्तून बलोच बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मजहबी तंजीम की तरफ से थ्रेट किया जाता है, उसे मारा जाता है कि मतलब, और वहां की पुलिस भी
यानी मार भी हमारे बच्चे खाते हैं जो स्कॉलरशिप पे गए हैं, बलोच और पश्तून, मार भी हमारे बच्चे खाते हैं, एफआईआर भी हमारे बच्चों पे दर्ज किए जाते हैं। अभी कल ही आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मजहबी तंजीम ने हमारे पश्तून और बलोच जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको मारा है शदीद, उनमें 6-7 शदीद जख्मी भी हैं और एफआईआर भी उन्हीं जख्मियों पे काटी गई है और वो अरेस्ट हुए हैं। तो इससे बड़ी और क्या साजिश हो सकती है हमारे तालीमी इदारों के साथ, हमारे लोगों के साथ। लेकिन अगर ये साजिश मैं और आप समझ सकते हैं तो हमारी यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं तो क्या वो इस साजिश को नहीं समझती? अगर वो इस साजिश को, तालीमी डिजास्टर को, इस साजिश को नहीं समझती तो फिर उनको हमारे इन लोगों पे लीडरशिप का हक भी नहीं बनता। जी फरीद साहब, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है किसी एमफिल पीएचडी या मास्टर के स्टूडेंट्स को? नहीं जी, अब जो है ना ऐसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। आप देखिए हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। डॉक्टर अताउर रहमान जो एचएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक फोरम पे जहां मैं बैठा हुआ था ये दावा किया कि हमने तकरीबन 11,000 स्कॉलरशिप्स जो है ना एचएससी ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को दी है। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप मुझे ये बताएंगे, क्योंकि मैं असातिज़ा तंजीम का नुमाइंदा हूँ तो मेरा ये फर्ज भी बनता है कि अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से, अपने सूबों के लोगों के हवाले से मैं उनसे सवाल पूछ सकूं। मैंने कहा आप मुझे बताएंगे तफसील कि आपने किस किस सूबे को कितनी स्कॉलरशिप्स दी हैं। तो उनके पास वो डेटा मौजूद नहीं था, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन में से मैंने वो डेटा लिया हुआ था। मैंने उनके गोश गुजार किए कि आपने 105 स्कॉलरशिप्स बलूचिस्तान को दिए हैं, 750 स्कॉलरशिप यानी 750 स्कॉलरशिप्स आपने खैबर पख्तूनख्वा को दिए हैं, आपने 930 स्कॉलरशिप्स सिंध को दिए हैं, 2 आपने आजाद कश्मीर को दिए हैं और 2 गिलगित बल्तिस्तान को दिए हैं। अभी आप अंदाजा करें तकरीबन 9,000 स्कॉलरशिप सिर्फ उन्होंने सूबा पंजाब को दी। तो हमारे साथ तो वैसे भी ज्यादती हुई है, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ स्कॉलरशिप में पहले भी ज्यादती हुई है और इस वक्त भी हमारे पास कोई एक ऐसा स्कॉलरशिप मौजूद नहीं कि हमारे बच्चे जो है ना वो एमफिल पीएचडी के लिए बाहर जा सके। जो भी जाते हैं वो अपना पेट काट कर एमफिल और पीएचडी के लिए बाहर जाते हैं। यूनिवर्सिटी की सतह पर या हुकूमती सतह पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं। जी फरीद साहब, एकेडमिक हवाले से बातें की, एक बात और मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इदारे के अंदर हैं तो अक्सर मैंने ये इसका ज़िक्र किया है कि अभी डिजिटल दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखेंगे तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में या बलूचिस्तान में कहीं भी अगर आर्ट के हवाले से, जैसा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है हमारे वहाँ, मतलब फ़िल्म मेकिंग के हवाले से, कोई भी म्यूज़िक के हवाले से इस तरह का कोई भी क्लास या सिस्टम नहीं है और न ही इस पर तवज्जो दी जा रही है। जैसे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं बाहर जाते हैं, वो म्यूज़िक पढ़ते हैं या कि फिल्मिंग के हवाले से, तो इस पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो या इसको इस हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे फाइन आर्ट्स का बहुत ही खूबसूरत डिपार्टमेंट है। हमने उसके लिए एक हमारा बरूरी में हमारा सिटी कैंपस के नाम से था, वो पूरा कैंपस ही फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया गया है। इंशाल्लाह मैं उसकी एक वीडियो बना के फिर आपको सेंड कर दूंगा। इंतहाई खूबसूरत कैंपस है, बहुत ही मेहनती असातिज़ा हैं और उन्होंने आर्ट्स के शोबे में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। और आपने जो फिल्म मेकिंग के हवाले से बात की है, हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं जो बुनियादी तौर पे उनकी तालीम ही फिल्म मेकिंग के हवाले से एनसीए से उन्होंने हासिल की है। वो इस वक्त हमारे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के टीम का हिस्सा है और इस वक्त वो बैरून मुल्क अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए गए हैं। तो इस चीज को काफी फोकस भी किया गया है फिल्म मेकिंग को। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में जब वो आएंगे तो वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में अपनी फिल्म मेकिंग का जरूर मतलब वो शुरू करेंगे, अपना सब्जेक्ट जरूर वो शुरू करेंगे, क्योंकि निदाल सहर हमारे नोशकी के हैं प्रोफेसर, बहुत ही प्यारे और
काफी मतलब मैं कहता हूँ फिल्म मेकिंग के एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही वो तालीम मुकम्मल करके आएंगे वो अपना ये सब्जेक्ट शुरू करेंगे। बहरहाल आर्ट्स का हमारा इंतहाई मुकम्मल और कॉम्पिटेंट असातिज़ा कराम पे मुश्तमिल डिपार्टमेंट है, जो मेरे ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है। जी जी, बहुत शुक्रिया कि ये अच्छी बात की आपने, खुशखबरी दी इन सारी बातों के साथ साथ। और हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। हम आपसे एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमने वक्त बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका शम्स भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सामीन, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हवाले से, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के मसाइल्स के हवाले से। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हमारा कौमी असासा है कि जिनसे हमारी आने वाले नस्लों की, हमारे आने वाले जनरेशन्स की ज़िंदगियाँ रिलेटेड हैं। तो हमारे जितने कौमी पार्टियां हैं या सियासी पार्टियां हैं, उनको हम सबको चाहिए कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को फ़र्स्ट प्रायोरिटी देकर अपने काम आगे बढ़ाएं।